everyone, and welcome to the world of biology. Today, as we are going to start with class 11, we are going to start with the unit 1, chapter number 1, that is the living world. We'll just see the introductory part of this chapter, and from next video, we'll see the rest of the topics. Okay, but before starting with this chapter, I would just like to tell you something about the biology. So, see what exactly the biology is. Biology itself, the term says bio means life and logy means study. So, we are going to study about what life. So we know in this world there are so many living organisms, there are varieties of living organisms. So we are going to study about the life of that particular organisms. Fine. Now biology is actually divided into two parts. One is botany and another is zoology. Okay. Now botany is related to plants, so under botany, we are going to study about the plants, and zoology is related to animals. So under zoology part, we are going to study about the animals' life. Fine. So this is about the biology. So our full biology is divided into two parts. One is botanical part and another is zoological part. But the chapter that we are going to study is common for both the parts. Fine. Okay, now let us begin. So see, as I told you, we are going to study only the introductory part. So let us see. See, what is the first point? How wonderful is the living world? Now we know in this world there are so many living organisms, and by looking at those living organisms we actually get amazed. हमें बहुत अच्छा लगता है उन सारे living organisms को देख के, उनकी beauties देख के, right? And हमें ये भी पता है कि there are millions of living organisms which are present on the earth. Okay, now see there are wide range of living type. अभी wide range मतलब there are varieties of living organism and उन सब को देख के हमें बहुत amazing feel होता है, right? अब तुम देखोगे varieties मतलब अगर bird consider करोगे तो bird में भी कितनी सारी varieties हैं. एनिमल कंसिडर करोगे तो एनिमल में भी कितनी सारी वेराइटीज़ है. एक्वाटिक कंसिडर करोगे तो एक्वाटिक में भी कितने सारे स्पीशीज़ है अलग अलग टाइप के, राइट. सो बाई लुकिंग एट दोज थिंग्स हमें एक्चुअली बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है. येस और नो? ओके. ना नेक्स्ट इज व्हाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स. ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कुछ अलग. हैबिटेट का मतलब क्या होता है? द प्लेस वेयर द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू लिव. Okay, so there are so many places where organisms live in the extraordinary conditions. Okay, so let us see ऐसे कौन कौन से places है जहाँ पे organisms रहते हैं and वो भी extraordinary है places. So देख लेते हैं. See the first is this is a cold mountain where you can see this species is living. हम वहाँ रह सकते हैं? No, it's not possible for us. Next see this is a deciduous forest. सो इन दिस डेसिडुअस फॉरेस्ट में भी अगर हम देखेंगे तो प्लांट भी इतने ही मिलेंगे, एनिमल्स के स्पीशीज भी उतने ही मिलेंगे, राइट. सो वेराइटीज हमें मिलती हैं वहाँ पे. ओके. नेक्स्ट यहाँ है ओशन. तो ओशन में भी तुम्हें अलग अलग स्पीशीज देखने मिलेंगे. नेक्स्ट इज डेजर्ट में कौन रहता है? कैमल, राइट. नेक्स्ट क्या है? हॉट स्प्रिंग. दिस हॉट स्प्रिंग इज लाइक जमीन से वो गर्म पानी का कुंड जो होता है, गर्म पानी जो निकलता है, राइट. देखा होगा तुमने. तो ऐसे हॉट स्प्रिंग्स में भी तुम्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं. कौन से? तो देर आर सम ऑफ दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ये हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, राइट. हम तो नहीं रह सकते, हम जल जाएंगे. सो ओनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन लिव इन सच हॉट स्प्रिंग्स. नेक्स्ट क्या है? देखो नेक्स्ट इज अबाउट द फ्रेश वाटर लेक. ओके. सो फ्रेश वाटर लेक में भी हमें अलग अलग टाइप के स्पीशीज देखने मिलते हैं, राइट. सो दिस आर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस वेयर यू कैन सी द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लीव. ओके. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है. नेक्स्ट इज अबाउट द डीप सेंस ऑफ वंडर. ना ये डीप सेंस ऑफ वंडर जो है वो हमें क्या दिखाता है? ब्यूटी.
अभी ये ब्यूटी हमें कहाँ देखने मिलेगी? सो देर आर सम ऑर्गेनिजम्स जो इतने ब्यूटीफुल होते हैं या फिर उनकी एक्ट इतनी ब्यूटीफुल होती है कि हमें सोच में डाल देती है कि ओ माय गॉड हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, ये कैसे कर लेते हैं, ये कैसे हुआ रहेगा, राइट? सो हम देखते हैं ऐसी कौन सी ब्यूटीज़ है विच गिव्स अस अ डीप सेंस ऑफ वंडर. So let us see the first one is galloping horse. तुम्हें पता है galloping horse क्या होता है? ये सिर्फ हॉर्स नहीं है जो दौड़ रहा है. द हॉर्स जब दौड़ेगा, जब भागेगा, तब उसके चारों के चारों फीट, कैन यू सी, चारों के चारों फीट जो है वो लैंड से ऊपर है. मतलब whenever it runs, राइट? सो उनके जब वो एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो चारों के चारों फीट को वो पहले ऊपर लेगा, फिर वो फिर से लैंड पे रखेगा. सो व्हेन इट रन्स, उसके एक साथ चारों के चारों फीट क्या होते हैं? ऊपर रहते हैं. जब हम भागते हैं तो कैसे रहता है? एक पाँव नीचे रहता है और एक पाँव ऊपर रहता है. तो तब हॉर्स में, ये गैलोपिंग हॉर्स में ऐसे नहीं होने वाला. चारों के चारों फीट भागने के टाइम पे कैसे रहेंगे? ऊपर, राइट? सो दिस इज ब्यूटीफुल और नॉट? ओके. नेक्स्ट इज व्हाट? माइग्रेटिंग बर्ड्स. अब ये तो हमने देखा ही है. ये दिस इज जब भी कोई बर्ड्स ग्रुप में अगर मूव होते हैं तो हमें वो कितना अच्छा लगता है देखने में, राइट? सो दिस इज ऑल्सो ब्यूटी. अभी माइग्रेटिंग मतलब दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर सो एंड सो रीजन. सो ये अच्छा दिखता है कि नहीं? सो इट इज़ ऑल्सो ब्यूटी. नेक्स्ट इज वैली ऑफ फ्लावर्स. बट ऑब्वियस अगर कोई प्लेस पे बहुत सारे फ्लावर्स अगर एक साथ ब्लॉसम हुए हैं तो एक्चुअली इट मेक्स दैट प्लेस ब्यूटिफुल. हमने देखा होगा बहुत सारे माउंटेन्स पे या फिर रेंजेस पे या तो गार्डन में अगर एक साथ अगर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं तो हमें ये अमेजिंग लगता है. यस. नेक्स्ट इज शार्क अटैक. अभी शार्क अटैक बोलो या डॉल्फिन अगर पानी में से बाहर निकलता है तो कितना ब्यूटीफुल लगता है, राइट? दैट इज दिस थिंग, राइट? सो देर आर सो मैनी ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स होंगे जो ब्यूटी अपने वर्ल्ड को देता है. सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स भी है जो एक्चुअल में इट गिव्स अ ब्यूटिफुल अपीयरेंस एंड इट मेक्स deep sense of wonder that how beautiful these things are. Okay, now let us see the next. So see, next is what indeed is life. अब ये क्वेश्चन क्यों अराइज होता है? अब भी जस्ट हम देख के आए कि देयर आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स, देयर आर ब्यूटीफुल और अमेजिंग थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, राइट? अब इससे तो ये इंडीड इज लाइफ मतलब कि लाइफ क्या होता है ये अराइज होता है. Yes, at some point, but उसके अलावा भी there are some other points जो हमें ये question arise करता है. So which is that point? See, ecological conflict. Now ecology मतलब कि nature, environment and उसमें जो conflict हो रहा है. तो तुमने predators and prey के बारे में तो सुना ही होगा, right? सो प्रीडेटर्स एंड प्रे इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है कि नहीं? लड़ाई होती है. प्लस यू माइट हैव सीन द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग मतलब पेरेंट एंड उनके बच्चों के बीच में, या फिर मेटिंग के टाइम पे कौन सा मेल कौन से फीमेल के साथ मेट करेगा उसके लिए भी एनवायरनमेंट में मेटिंग होती है. सो ये जो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है या फिर कॉपरेशन अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन. अभी कोई पॉपुलेशन में अगर मेंबर्स के बीच में कॉपरेशन हो मतलब कि दे आर वर्किंग टुगेदर, दे आर डूइंग थिंग्स टुगेदर, इन शॉर्ट लाइक अ टीम वर्क. ओके. या फिर अमॉन्ग द पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी. अभी ये जो वर्ल्ड है इसमें इतना सारा पॉपुलेशन है तो हर जगह पे कोई ना कोई कम्युनिटी फॉर्म होती है. तो उन कम्युनिटी में भी जो पॉपुलेशन है उनके बीच में अगर कॉपरेशन होता है तो ये सारी चीज़ों से भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सब कैसे चल रहा है, ये सब लाइफ कैसे है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हो रहे हैं, राइट? सो दिस हेल्प अस टू क्रिएट अ क्वेश्चन दैट व्हाट इंडीड इज लाइफ. या फिर उसके अलावा और एक चीज़ है दैट इज मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट इन इट. अब इसका मतलब क्या होता है? हमें पता है कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आजू बाजू में बहुत सारे क्या है सेल के अंदर? ऑर्गेनल्स हैं. तो सेल के अंदर ये जो ऑर्गेनल्स हैं या न्यूक्लियस है सब में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस होता है और यू कैन से
कोई ना कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है जिसके वजह से वी गेट अ एनर्जी, राइट। सो कुछ ना कुछ तो ये सेल के अंदर बनेगा ना। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कभी प्रोटीन्स बन रहा है, कभी अमीनो एसिड्स बन रहा है, कभी फैट्स बन रहा है, कभी कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है, राइट। तो इतने सारे मॉलिक्यूल का भी सेल के अंदर क्या होता है, ट्रैफिक होता है। तो इन सब के बारे में अगर हम डीपली अगर सोचेंगे तब जाके हमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट एग्जैक्टली द लाइफ इज, ये कैसे चलता है, ओके। उसी पे से ये क्वेश्चन अपने आप में ही दो क्वेश्चन अराइज करता है। एक है टेक्निकल वन एंड दूसरा है फिलोसॉफिकल वन। अभी टेक्निकल वन का मतलब क्या होता है कि ये हमें उन क्वेश्चन के आंसर्स देता है, जैसे कि व्हाट लाइफ इज, या फिर लिविंग क्या है, या फिर लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर हमें कौन देता है, टेक्निकल वन वाला। एंड फिलोसॉफिकल वन वाला हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर देता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, मतलब कि लाइफ का पर्पस क्या है। तो हमें लाइफ के पर्पस से तो हाल फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, हमें किन चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि what exactly the life is, right? So as a scientist, if we are working, we don't need to work on the philosophical one, we need to work on what, technical one, and we will also reflect on what exactly the living is and how it differs from the non living things. Got it? So अब ये जो what is living है वो हम अभी नहीं, we will study in our next video. ओके, सो आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड टिल योर। सो हमने क्या क्या देखा अभी तक, हमने ये देखा कि हाउ वंडरफुल द वर्ल्ड इज, द लिविंग वर्ल्ड इज। फिर हमने देखा कि कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स हैं। फिर हमने द ब्यूटी देखी वर्ल्ड की। फिर हमने ये भी देखा कि ये क्वेश्चन व्हाट इंडीड इज लाइफ कहाँ से अराइज हुआ, एंड उसके भी दो क्वेश्चंस है, एक तो टेक्निकल वन और फिलोसॉफिकल वन। एंड हम किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं, व्हाट इज लिविंग एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम दी नॉन लिविंग थिंग्स, फाइन। सो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है एंड आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड एंड इट्स क्लियर फॉर यू ऑल. So we'll continue with what exactly the living is in the next video. Till that, thank you and take care.